Hello all my dear students, I am Professor Neetu Ghai and once again I am back with a new topic, that is idioms and phrases. Yesterday I gave you some of the idioms and phrases. I gave you one question to solve for the idiom and phrases, and now I'll continue with the practice session of idioms and phrases so that you can get familiar with the questions of NDA examination. See बच्चा, जितने भी क्वेश्चन मैं आज कराऊंगी आपको, they are from the NDA examination last year papers, so that you can get used to. In the foundation level even you can get used to of the questions of NDA exam, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ ऐसे questions आपको solve करने हैं. So are you ready? Yes, you all are ready. So let's begin. Idioms and phrases practice session, और इस idioms and phrases का practice session का first question कल आप कर चुके हैं, and that was as cool as cucumber. Now what it means आपको पता है, इसका meaning है stress free, calm, relaxed, happy. That is as cool as cucumber, and I gave you this question even to solve, और ये हमने कल solve किया था. Now the next question, and that is, see this. Don't judge a book by its cover. That means किसी भी चीज को उसके कवर या उसके ऊपरी कवरिंग से मत जज करो. Don't check anybody by their outer presentation. ठीक है, तो don't judge a book by its cover. Now इसके ऊपर सेंटेंस देखिए आप कैसे आएंगे. That means one should not judge the worth or value or something by its outward appearance alone. This is the meaning कि किसी भी चीज को आप उसके ऊपरी दिखावे से जज मत करिए. हो सकता है ऊपरी कवर अलग है, अंदर अलग है, पैकिंग अलग है, अंदर सामान अलग है. तो don't judge a book by its cover. Now see, the man may look very small and insignificant, but don't judge a book by its cover. He is very powerful man in his circle. Now see, this sentence is covering the clear meaning of the idiom, don't judge a book by its cover. That means दिखने में अगर कोई इंसान बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन मैन टाइप का है, बहुत ही सोबर है, बहुत ही सिंपल है, तो उसके ऊपरी दिखावे पे मत जाइए, उसके मॉडेस्ट लुक पे मत जाइए. हो सकता है वो बहुत पावरफुल हो सकता है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, but he chooses to be humble, he chooses to be simple. ठीक है. Do you know Ratan Tata? Yes, you all know Ratan Tata. Do you know Bill Gates? Yes, you all know Bill Gates. These are very famous name in the entrepreneurship field. They are very big businessman. तो अगर आप रतन टाटा को देखेंगे तो he lives a very sober life. He lives a very simple life. तो उनको देख के कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि he is a billionaire. He is one of the biggest entrepreneur of the world. तो उनको ये देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, and that clears the meaning. Now let's move forward to the next one. Now see this, head in the clouds. What does it mean, head in the clouds? See the giraffe, और जिराफ का सिर कहाँ है? आसमान में, बादलों में है. उसका दिमाग आसमान में है. अब ये हिंदी में भी आपने सुना है. क्या सुना है आपने? आजकल उसका दिमाग 7वें आसमान पे रहता है. 7वें आसमान पे रहता है मतलब बादलों में रहता है. हेड इन द क्लाउड्स, ड्रीमिंग, अपने ही ख्यालों में है, अपनी ही दुनिया में. दैट क्लियर्स द मीनिंग, हेड इन द क्लाउड्स. नाउ चेक आउट द सेंटेंस. हेड इन द क्लाउड्स का मीनिंग है डे ड्रीमिंग, अपनी ही दुनिया में, अपने ही ख्यालों में. एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड, खोया खोया. So don't have your head in the clouds, you must be present every time. Not only physically present, you must be mentally present. So head in the clouds means being unaware of what's going on. तो आप खोए खोए हो, आपको पता ही नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है. तो when a person is mentally absent, when the person is unaware of what's going out nearby that person, we can use the idiom head in the clouds, सातवें आसमान में. Now see, okay, see the sentence, and the sentence says he is not right for this job, he has his head in the clouds. That means वो इस job के लिए suitable नहीं है
क्योंकि उसका दिमाग 7वें आसमान में है, वो खोया खोया है, वो मेंटली एब्सेंट है, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? गॉट द मीनिंग? ओके, नाउ द नेक्स्ट इडियम, कॉल इट अ डे। Call it a day? Yes, call it a day means when you are done with your work. आपका जो काम है आपने पूरा खत्म कर लिया, अब बस खत्म, अब आराम करेंगे, तब आप ये यूज कर सकते हैं I will call it a day। मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मेरा जो काम आज के दिन का था मैंने खत्म कर लिया, दैट मीन्स मेरा आज का काम पूरा हुआ and I can call it a day। Now see the meaning of it, to stop work or another activity, to end doing an activity for the day because you feel you have done enough। That means जितना काम आपको करना था आपने कर लिया, now you can call it a day, call it a successful day, call it a worthy day। That means आपने जो काम के लिए आज पूरा ध्यान रखा था कि ये काम होना है, वो आज काम हो गया। ठीक है? Now see the example, I cannot work in this heat any longer, I am calling it a day। अब मैं और काम नहीं कर सकती, अब मैं थक गई हूँ, तो अब मैं इसको क्या बोल रही हूँ? आई एम कॉलिंग इट अ डे, दैट मीन्स आई एम डन विथ माई वर्क। अब मेरा काम खत्म, अब मैं अपना काम बंद कर रही हूँ, एंड दैट इडियम मीन्स कॉल इट अ डे। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन ऑफ अनदर इडियम, एंड दैट इज बीइंग एन इंट्रोवर्ट ही विल ओनली ईट हिज हार्ट आउट। ओके, नाउ heat is heart out। अब इस क्वेश्चन में see the meaning of this word introvert। What does introvert means? अब ये idiom का आंसर तब क्लियरली आप चूज कर पाओगे बच्चा जब इस वर्ड का मीनिंग पता है। Introvert is the person who does not share his opinion with anyone। Introvert is a shy person। Introvert is a reserved person, जो ज़्यादा बोलता नहीं है, जो किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, जो अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करता, अपनी प्रॉब्लम नहीं अपनी खुशी भी जाहिर नहीं करता। दैट मीन्स दैट पर्सन डज नॉट लाइक टू एक्सप्रेस फ्रीली। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है? अब वो पर्सन होता है इंट्रोवर्ट। अब सेंटेंस का मीनिंग ये है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, वो सिर्फ अपना दिल जिगर ही खाएगा। अपने दिल को कौन खाता है भाई? मैंने आपको पहले ही बताया था, यू कैन नॉट ट्रांसलेट द इडियम डायरेक्टली इनटू हिंदी टू कैलकुलेट द मीनिंग। वैसा नहीं करना है। टू ईट हिज हार्ट आउट मीन्स क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, वो अंदर ही अंदर परेशान होगा। ही विल जस्ट टैकल दैट प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ ओनली। वो अपने आप में ही वो प्रॉब्लम रखेगा, वो किसी को नहीं बताएगा। क्लियर? नाउ चेक आउट द मीनिंग। क्या कोई मीनिंग बेस्ट सूटेबल हो रहा है? लेट्स चेक। ईट टू मच, क्या ईट हिज हार्ट आउट का मीनिंग ईट टू मच है? नॉट एट ऑल। कीप ब्रूडिंग, कीप ब्रूडिंग मतलब वो सिर्फ ढूंढ रहा है, वो परेशान हो रहा है। नो। इनवाइट ट्रबल, इनवाइट ट्रबल मुसीबतों को बुलावा देना। नो, wrong option। answer is suffer silently। that means वो चुपचाप हर एक तकलीफ को बर्दाश्त करेगा, वो कभी भी किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। to eat his heart out का मीनिंग है suffer silently। okay, done। now let's check out the next question जल्दी से। and the next question says I have warned him now and then not to resort to violence। that means मैंने उसको वॉर्न किया है कि कभी भी वॉयलेंस पे नहीं जाना। नाउ एंड देन मीन्स नाउ एंड देन बार बार। मैंने उसको बार बार वॉर्न किया है, जब देखो तब वॉर्न किया है, पहले भी किया है और अभी भी किया है। मीन्स बार बार, फ्रीक्वेंटली। नाउ कंसिस्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, ओकेशनली, रिपीटेडली। व्हाट विल बी द आंसर? You will give me the answer for this। I have given you 4 options and you will give me the answer for this। If you are able to give, you are very correct। If you are not able to give the answer, I'll give you the answer in my next lecture। So this is the homework। Check out the question। मैंने बातों बातों में आपको बताया है इसका मीनिंग। जब मैं क्वेश्चन समझा रही थी, I have given you the hint and you will tell me the right answer। Okay? Now the next, his phenomenal success shows that he has got the Midas touch।
अब ये मिडास टच क्या होता है उसको क्लियर करने के लिए लेट्स सी दिस. व्हाट इज दिस? अ हैंड, गोल्डन हैंड, और वो गोल्डन हैंड में गोल्डन पार्टिकल्स. मिडास वॉज द पर्सन हु गॉट द सुपरनैचुरल पावर कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगा. ठीक है, उसके पास ये सुपरनैचुरल पावर था मिडास के पास कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई ही गॉट द क्वालिटी मिडास टच. मिडास टच का मीनिंग आ गया. अब सी द क्वेश्चन, मिडास टच के लिए व्हाट ऑप्शंस वी कैन हैव एंड which option is the best option? Check it out. And the options are fabulous wealth, tremendous acquaintances and resources. Acquaintances मतलब जान पहचान, friends and family, near and dear ones, दोस्त, रिश्तेदार, उनको हम बोलते हैं acquaintances. Okay? Superhuman qualities and the last one, able to succeed in all projects. तो मिडास टच का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगा. मिडास टच का मीनिंग होता है कि वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम सक्सेसफुल होगा, वो जिस प्रोजेक्ट में काम करेगा वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. एंड द आंसर इज दिस. क्लियर? मिडास टच, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स. None? I hope ये question समझ में आ गया है. Now see the next question, and what the next question says? The next question says the story published in the newspaper is not true, but the journalist has painted it in bright colors. That means जो newspaper में story publish हुई है वो सच नहीं है, but journalist ने उसको बहुत bright colors में present किया है. ब्राइट कलर्स मतलब बहुत रंग बिरंगे कलर्स में, बट डायरेक्टली मीनिंग से इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग नहीं आएगा. ब्राइट कलर्स में प्रेजेंट किया है. लेट्स चेक आउट द मीनिंग कि क्या हो सकता है. नाउ सी द ऑप्शंस. प्रोवाइडेड इलस्ट्रेशंस विद इट. इलस्ट्रेशंस, इमेजेस, पिक्चर्स, एग्जांपल्स. आपकी बुक में चैप्टर्स के साथ इलस्ट्रेशंस होते हैं. Illustrations help you to understand the concept. तो क्या जर्नलिस्ट ने न्यूज़पेपर में स्टोरी को हेल्प करने के लिए इलस्ट्रेशंस या एग्जाम्पल दिए हैं? नो, नॉट एट ऑल. एग्जैजरेटेड इट. अब ये एग्जैजरेट करना क्या होता है? दिस इज अ न्यू वर्ड. इसको भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इट इज. यू विल कम अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, यू विल face this word again and again in your English syllabus. Okay? Exaggerate means बढ़ा चढ़ा के बताना. Exaggerate means बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलना, बहुत ज़्यादा show off करके बोलना. Now, made it more comic. तो क्या painted in bright colors उसने story को comic way में present किया? No, wrong answer. Added some emotional incident to it. Again, जर्नलिस्ट ने स्टोरी के साथ कोई इमोशनल इंसिडेंट ऐड किया? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज द करेक्ट आंसर. टू एग्जेजरेट मीन्स बढ़ा चढ़ा के बताना. तो वो स्टोरी झूठी थी, पर जर्नलिस्ट ने उस स्टोरी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, बहुत शो ऑफ करके बताया. क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. ये सारे क्वेश्चंस याद रखेंगे, नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर में. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आई विल मेक यू डू इन माय क्लास सो दैट यू कैन हैव द कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज. अगेन, सिर्फ लिखना नहीं है, बोलना भी है. यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग. और इसके साथ साथ आज का होमवर्क याद है, you must message me the correct answer of that idiom. That is a compulsory homework for you all. Okay? All this for today. Thank you. Have a nice day.